Good evening, everybody. Want to welcome each one of you to this fifth day of our anniversary program. We call ourselves the Crown of Life Ministries here in the city of Pune, and this is our 9th anniversary. In these 9 years, God has been really good, faithful, gracious, merciful, and kind. And we have indeed tasted His goodness and mercy every day of these 9 years. And in this 10th year, God has given us a very beautiful theme called as Set to Replenish. Before I introduce today's worship leader and the speaker, I would love to give you a beautiful inspiration from this theme. When the Lord says, set to replenish, the idea of being replenished means He's going to fill you beautifully. He's going to make you all over new once again for His glory and honor. And when He plans to do that, there's something that He'll remove from your life. And that is called barrenness, reproach, or shame. Certain such elements which can be so devastating, so disturbing, which can be discouraging too. But God says, I will remove all of that. And once I do that, I will fill you up beautifully. We pray you who are watching us today, as an individual, a family, or a church, may this theme or the blessing or the promise from God of being replenished be your portion in Jesus' name. Amen. Request you to continue watching us today. We have Brother Frank Peter from Pune leading us into a very beautiful time of worship. And after that, we have our senior pastor, Pastor Jennifer Raya, bringing the word to us. We request you to stay on and let the Lord work beautifully into your life. God bless you, my friends. Have a beautiful evening. Praise the Lord, everyone. This is Frank Peter and I'm from Pune. And I want to thank God for giving me this opportunity to praise His name and lift His name. I really want to thank Pastor Binoy Cherin also for giving me this opportunity, for having me here. And let's thank the Lord this moment and let's praise His name. Let's bow our heads in worship because the Lord inhabits in the praises of His people. खुदावन यीशु उसके लोगों के आराधनाओं में स्तुति में विराजमान होने वाला परमेश्वर है. God, we welcome you this time. We just want to exalt your name. That's the only thing we want to do. Oh, let your name be lifted up. We worship you. Hallelujah. Thank you, Father. We worship you. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh my Lord, praises to your name. Oh my Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. Teri stuti
योग्य है। तेरी महिमा मैं गाऊंगा, ऐ प्रभु महिमा मैं गाऊंगा, ऐ प्रभु तेरा नाम है श्रेष्ठ और स्तुति योग्य है। Yes, my Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Thank you, Lord, in these days of pandemic, we look up to you. We look up to you, Father. खुदा कोई शस्त्र हमारे खिलाफ तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि तू हमारे साथ है। परमेश्वर तू हमें शक्ति देता है और कोई शस्त्र हमारे खिलाफ नहीं उठेंगे। हम ये विश्वास रखते हैं। Amen. Thank you, Father. तो तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर न होगा सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर न होगा सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। Thank you, Father. We exalt your name, God. अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। Thank you, Father. परमेश्वर तूने अब तक हमें संभाला है और सारे रोगों से तूने हमें बचाए रखा है। खुदा हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारे पास जो भी शस्त्र आएंगे परमेश्वर, जो भी पीड़ा आएगी परमेश्वर, प्रभु तू सारे पीड़ाओं से, सारी चीजों से तू बड़ा है परमेश्वर। लॉर्ड यू आर बिगर
and greater than any disease, any virus, oh Father. We exalt your name, we exalt your name, and we extol your name, Lord, because glory and worthy are you of all our praises, Lord. Thank you, Father. God is good and He will remain good. Amen. परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है और उसकी भलाई हमेशा सदा की है. God says, the Bible says that He is the way, He is the truth and He is the life. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मार्ग है, वो सत्य है और वही जीवन है. और हम उसके राहों पर चल पड़े हैं. और ये गीत हम सचमुच परमेश्वर से कहे कि प्रभु हम सब चल पड़े हैं, तेरी राहों पर चल पड़े खुदावन. और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा हमारे जीवनों से होने दे. Thank you, Father. Let's all sing this song, and I believe that God is exalted in our midst. हमें कोई भी चीज की डर नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है. चल पड़े यीशु के साथ हम, अंधियारी राहों में तू रोशनी बन. मेरे मार्ग का उजियाला है तेरा वचन, तेरी शब्दों की ज्योति में बढ़ते हैं मेरे कर्म. चल पड़े यीशु के साथ हम, अंधियारी राहों में तू रोशनी बन. मेरे मार्ग का उजियाला है तेरा वचन, तेरे शब्दों की ज्योति में बढ़ते हैं मेरे कर्म. चल पड़े यीशु के साथ हम, अंधियारी राहों में तू रोशनी. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. डरना नहीं, तेरे ही पास होगा वो, चाहे तू अंधियारी तराई में हो. डरना नहीं, तेरे ही पास होगा वो, चाहे तू अंधियारी तराई में. यीशु मार्ग है, वही मार्ग है, तू सत्य तू जीवन मेरा. Thank you, Jesus. वही मार्ग है, तू सत्य तू जीवन मेरा. चल पड़े यीशु के साथ हम, अंधियारी राहों में Thank you, Father. Hallelujah, 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 hallelujah. तू हारा नहीं, विजेता से भी है बल्कि तू बुलाया गया, चुना हुआ मंच है तू. तू हारा नहीं है, तू हारा नहीं, विजेता से भी है बल्कि तू बुलाया गया, चुना हुआ मंच है तू. यरीहो के दीवारें क्या रोक सकेगी तुझे, तेरे साए से एक दिन हो जाएंगे मुर्दे खड़े.
निगम। मेरे मार्ग का उजियारा है तेरा वचन, तेरे शब्दों की ज्योति में पड़ते हैं मेरे कदम। ओ चल पड़े यीशु के साथ हम, अंधियारी राहों में तू रोशनी बन। Father, we praise you. प्रभु, हमें कोई भी चीज को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा चाहे मैं अंधेरी तराइयों से जाऊं चलूं, पर तू मेरे साथ है। God, your word says, even though I walk through the wilderness, even though I walk through the darkness, Lord, you are with me. Even though I walk through the shadow of death, you are with me, O God. Thank you for your promises, Lord, that give us so much strength. Thank you once again, Father, for uplifting us, our spirits, Father. We praise you. We praise you. Thank you once again. Hallelujah. परमेश्वर अच्छा है, और इन दिनों में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग तकलीफों में हैं, बहुत सारे लोग बीमारी में हैं, पर इन सारी चीजों में हम विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। The Bible says that He will never leave us, He will never forsake us. और उसका वचन सच है, उसका वचन सत्य है। ये जमीन और आसमान टल जाएंगे, पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। I praise God that God has kept us protected in His arms. परमेश्वर ने हम सबको, उसके बच्चों को, उसके बाहों में, उसके bosom में, उसके सीने पर छुपा के रखा है, उसके पंखों के तले छुपा कर रखा है। और हम विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर ये सारी स्थितियों को जरूर और जरूर इन दिनों में God is providing His grace to His people, and we all still believe that God is in control of all the situation. परमेश्वर सारे situations में परमेश्वर कंट्रोल में है। आइए इस खुदा को हम धन्यवाद दें। God, we want to exalt your name. हम तुझे आराधना देते खुदा, और तू जो कहेगा खुदा वही हम करेंगे परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन जो कहेगा परमेश्वर हम वही करेंगे खुदा। हम सारी महिमा तुझे देते हैं, हम सारा आदर तुझे देते हैं। We exalt you, Father. Hallelujah. Let's all sing the song and worship the King of Kings. तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु वे। तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु वे। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो कह रही मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु वे। तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु वे। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। हालेलुया। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे।
अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना आराधना यीशु तुझे, मेरे यीशुवे, आराधना यीशु तुझे। Thank you Father, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। राहों को अंधेरों ने जब घेरा वो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। तीरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़े, है बचाता यीशु, मुझको डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। वीरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु, मुझको डर ही नहीं है। सब मिलके आराधना आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। हालेलुया, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। हालेलुया। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम सारी स्तुति सारी महिमा आपको देते हैं खुदावन। Thank you Father once again for being an awesome God, for being our protector, for being our guide. परमेश्वर हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। सारे राहों को परमेश्वर, प्रभु तू हमारे राहों को जो परमेश्वर है तेरे वचनों से उजाला देता है परमेश्वर, because your word is a light to us, O Father, and to our feet. Thank you once again for all your words that is so powerful and so comforting, O Father. We praise you, we give you all the praise. Lord परमेश्वर तू बड़े और हम घटे, खुदावन यीशु तू बड़े और हम घटे। प्रभु हम सारी महिमा आपको देते हैं, सारी स्तुति आपको देते हैं परमेश्वर प्रभु, और ये सारा आराधना परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तुझे मिले परमेश्वर प्रभु। हम घटे खुदावन यीशु प्रभु, तेरा नाम महिमा से भरा है परमेश्वर, और तू सारी आराधना के योग्य है। You are worthy of all our praises, O Father. Thank you once again for being our guide, our Father who loves us so much that you gave your only begotten Son so that we may have eternal life, O Father. Once again, हम सब मिलके तुझे आराधना देते हैं क्योंकि तू योग्य है। सारी दुआ हम परमेश्वर, हम सब महिमा तुझे देते हैं। जो आने वाला वचन है परमेश्वर वो आशीषित कर परमेश्वर, हमारे मनों को खोल, हमारे स्पिरिचुअल आईज परमेश्वर, स्पिरिचुअल कानों को खोल परमेश्वर, हमारी आंखों को खोल परमेश्वर, ताकि हम तुझे देख सके, तुझे सुन सके परमेश्वर। हमारे अंतःकरण में से बात कर आज परमेश्वर, जो वचन आने वाला है परमेश्वर तेरे लोगों तक पहुंचने दे परमेश्वर। सारी स्तुति सारी महिमा हम आपको देते हैं, और ये प्रार्थना और ये आराधना यीशु मसीह के नाम से आपको देते हैं, इसलिए कबूल कीजिए। आमीन। Praise the Lord once again. Thank you so much all of you for having me, and once again thank you Pastor Binoy Cherian for having me in this worship session, and I believe that we all are blessed. I am personally blessed, and thank you once again for having me. God bless you all.
Praise the Lord and hallelujah. The Pune church family has completed 9 years. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, हालेलुया। पुना कलीसिया ने 9 साल ख़त्म किए हैं और सारा श्रेय सिर्फ परमेश्वर को जाता है। We give him all the glory. परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। It's because of him that the Pune church family could come thus far. उन्हीं के वजह से पुना कलीसिया के परिवार इतनी दूर तक आ पाए हैं। We join you to thank the Lord and we are so glad and congratulations आपको, अभिवादन आपको। और निश्चय ही हम जानते हैं, we know it and this is the truth, कि जो परमेश्वर अब तक आपके साथ में बने रहे हैं, the Lord God who has been with you thus far will continue to be with you even in times ahead. वो आगे भी विभिन्न ऋतुओं में, मौसमों में, समयों में आपके साथ में बने रहेंगे। In different seasons and times, He's gonna be with you in a much more mightier manner, और सामर्थ्यशील रूप में, in a much more stronger manner, और बलशील रूप में वो आपके साथ में बने रहेंगे। So Pastor Benoy, Pastor Sarah, and the entire leadership and the entire church of Pune, congratulations. We join you once again to give glory to God. हम आपके साथ पुनः मैं इस बात को कहना चाहूँगी कि हम आपके साथ में जुड़कर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Let's just go into what I'm supposed to do today. Just want to thank the Lord for the opportunity given. परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी जो उन्होंने मौका दिया हुआ है, and whatever जो परमेश्वर ने दिल में रखा हुआ है आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। Whatever the Lord has laid upon my heart, I want to bring it before you, church, and even as I do so, and even as you receive it, if you will, it will do us good. It will do us good and no harm. वो हमारे जीवनों में भलाई को ही उत्पन्न करेगा। Hallelujah. So let's just pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। आगे बढ़ने से पहले let's just pray. पिता परमेश्वर, हम आपको सराहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमको अनगिनत कारण देते हो आपको धन्यवाद देने के लिए। Lord, you give us so many reasons to thank you, God. We just want to thank you. We bless your awesome and magnificent name. You are great and mighty and you are awesome. परमेश्वर, हकीकत में आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप अद्भुत हैं, आप उत्तम हैं। Lord, we want to thank you. प्रभु, आपके वचन को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। Lord, we give your word into your hands. God, I have submitted myself in your hands, अब्बा। मैंने अपने आप को आपके हाथ में सौंप दिया है, अब्बा, और मैं निश्चय जानती हूँ, I believe that पवित्र आत्मा का संचालन होगा। अब्बा, आप होने देंगे कि पवित्र आत्मा का संचालन हो। And we sure, जैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में मंडराते हैं, व्यक्तिगत रूप में, सामूहिक रूप में, collectively and individually, even as the Spirit of God ministers to us, Lord, it will bring a change and it will bring a beautiful change in our lives. सुंदर बदलाहट को हमारे जीवन में पवित्र आत्मा ले आएंगे यीशु के नाम से। Lord, I hide in you, Holy Spirit of God. You please go ahead and do that which you have purposed to do. पवित्र आत्मा मैं आप में छिप जाती हूँ, आप आगे बढ़िएगा और करिएगा जो आपने निर्धारित किया हुआ करने के लिए आप करेंगे। इसलिए हम आपको पहले से ही धन्यवाद देते हैं। You're gonna do it, God, and so we give you we thank you from beforehand. We give you the glory from beforehand. यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं। We pray in Jesus name. और परमेश्वर के लोगों ने कहा आमीन। हालेलुया। अगर आप देखते हैं, परमेश्वर ने आकाश को बनाया, एंड आकाश को उन्होंने बनाने के बाद रिक्त नहीं छोड़ा। You know, God made the skies and He did not leave it empty. You know, खाली नहीं छोड़ा। हम जानते हैं कि वहाँ पे उन्होंने, हम पक्षियों को देखते हैं, we see birds in the air and birds flying in the sky, and He made the ocean. परमेश्वर ने समुंदर को बनाया और समुंदर को भी खाली नहीं छोड़ा परमेश्वर ने। समुंदर में भी हम मछलियों को देखते हैं, made the oceans, and in the oceans we see fishes and you know, oceanic creatures. We see them in the ocean. पृथ्वी को उन्होंने बनाया और पृथ्वी को भी खाली नहीं छोड़ा। He made the earth and earth was not empty. I mean, is not empty. पृथ्वी खाली नहीं है, मनुष्य से भरा हुआ है, जानवरों से भरा हुआ है। Praise the name of the Lord. And so God doesn't like emptiness. In fact, परमेश्वर को खालीपन बिल्कुल पसंद नहीं है. He doesn't like emptiness. उनको
अच्छा नहीं लगता है खालीपन. एंड दैट्स व्हाई ही मेड मैन, हमको बनाया है. एंड ही डजंट इंटेंड मैन टू बी एम्प्टी. और वो नहीं चाहते हैं कि मनुष्य भी खाली रहे. ही वांट्स मैन टू बी फुल. वो चाहते हैं कि परमेश्वर जो है भरा हुआ, क्षमा कीजिए, मनुष्य जो है भरा हुआ रहे. काहे से भरा हुआ रहे? विथ व्हाट? फुल ऑफ व्हाट? एंड फुल ऑफ हिज स्पिरिट. दैट्स व्हाट द लॉर्ड इंटेंड्स. परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप मनुष्य परमेश्वर की आत्मा से भरे पूरे रहे. प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड. दैट्स हिज इंटेंशन. दैट वाज हिज इंटेंशन एंड दैट्स हिज इंटेंशन. वही उनके मन में था और वही उनके मन में है कि मनुष्य जो है परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ रहे. प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड. पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहे. प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड. हालेलुया. पुना चर्च की एनिवर्सरी का जो शीर्षक है वो है रिप्लेनिश. द थीम for the anniversary is replenish, and the meaning of replenish is said to be full, or said to be full, कि तैयार हो जाए या सेट हो जाए, कि आप भर जाए, भरने के लिए सेट हो जाए, if I may say so, भरने के लिए सेट हो जाए, set up to be full, or position yourself to be full, to be filled, or to be full. Praise the name of the Lord. And that's what God intends for you and for me, that we would be full of His Spirit. Ephesians chapter 5 and verse 18 says, do not be drunk with wine, but be full of His Spirit. एफिसियों की किताब 5वां अध्याय और 18वें वाक्य में लिखा हुआ है कि तुम दाखरस को पीकर या दाखरस से मतवाले मत बनो, लेकिन उनकी आत्मा से, पवित्र आत्मा से आपका जीवन जो है भरा रहे. Praise the name of the Lord. पवित्र शास्त्र में हम इस संदर्भ को देखने वाले हैं जहाँ पे दो प्रकार के लोग हैं. एक प्रकार के लोग पहले तो भरे हुए थे, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो खाली हो जाते हैं. फिर हम देखते हैं वो बिल्कुल प्रकाश में पहले थे, फिर अंधकार में आ जाते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी रीति से जैसे वो थे, जैसी उनकी हालत थी, अच्छी हालत थी, लेकिन हालत जो है उनकी बिगड़ जाती है. एक प्रकार के लोग हैं. दूसरे प्रकार के लोग हम देखते हैं, one set of people, they were in light first, they were full first, but then they eventually become empty and the light is gone, and spiritual bankruptcy kind of takes over them. And we see the other group of people, और एक ग्रुप को देखते हैं जहाँ पे ये लोग जो है जलते हुए रहते हैं. they are bright and full and they're good, they're doing good. आपने गेस किया होगा कौन से दृष्टांत के बारे में हम बात कर रहे हैं. You might have guessed which parable we're talking about. We're talking about the parable of 10 virgins. हम 10 कुंवारियों के उस संदर्भ के बारे में बात कर रहे हैं. Before we go there, वहाँ पे जाने से पहले ये जो 25वां अध्याय, ये मत्ती का 25वां अध्याय है. इट इज़ मैथ्यू चैप्टर 25. ये 25वें अध्याय से पहले 24वां अध्याय, ऑब्वियसली 24. इन चैप्टर 24 जीसस इज टॉकिंग टू हिज डिसाइपल्स. यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं, एंड ही इज टेलिंग देम व्हाट विल बी द साइंस ऑफ एंड टाइम. शिष्यों से बात करते हुए यीशु हमारे प्रभु उनसे बात करते हैं और उनसे बताते हैं कि अंत के समयों का क्या क्या चिन्ह होगा. एंड हम इर्द गिर्द को जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये सारे चिन्हों को हम देख रहे हैं होते हुए. यस और नो? एंड वो यीशु जो है अपने शिष्यों से, ही इज टेलिंग हिज डिसाइपल्स, अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि कि मेरे आने का समय, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज कमिंग, एंड ही इज सेइंग दैट वो समय को कोई नहीं जानता. ही इज सेइंग दैट द टाइम नो वन नोज, नॉट इवन द एंजल्स. वो कहते हैं कि स्वर्गदूत भी नहीं जानते हैं, केवल अब्बा पिता ही जानता है, या जानते हैं कि कब यीशु आने वाले हैं. व्हेन द सन ऑफ मैन इज गोइंग टू कम बैक, व्हेन जीसस इज गोइंग टू कम बैक. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. एंड ये बताने के बाद 24वें अध्याय में ये बोलने के बाद यीशु मसीह फिर 25वें अध्याय में इन 10 कुंवारियों के बारे में बात करते हैं. ही टॉक्स अबाउट दीज 10 वर्जन्स, एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज 5 को मूर्ख ठहराया गया, मूर्ख कहा गया है पवित्र शास्त्र में, और 5 को जो है बुद्धिमान कहा गया है. क्यों मूर्ख? 5 क्यों मूर्ख थे और 5 क्यों बुद्धिमान कहलाए गए? we just gonna see few things, and whatever the Lord will speak for the church, we're gonna understand that too. Praise the Lord. Hallelujah. Can you turn with me to Matthew chapter 25? मत्ती के 25वें अध्याय में क्या आप आ सकते हैं?
मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, अंग्रेज़ी में पढ़ूंगी, और हमारे हिंदी भाई बंधु आप जो है साथ साथ मेरे साथ साथ हिंदी में पढ़िएगा. एंड या वील गो टुगेदर. इज दैट ओके? आई बिलीव दैट शुड बी ओके. हम मत्ती के 25वें अध्याय में आएंगे, मैथ्यू 25, और पहले वाक्य से 13वें वाक्य तक पढ़ेंगे. मत्ती 25, chapter 25, verses 1 through 13. I read, when the kingdom of heaven will be like 10 virgins. I'm reading in the amplified version. Then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, thoughtless, silly, and careless. And 5 were wise, far-sighted, practical, and sensible. For when the foolish took their lamps, they did not take any extra oil with them. But when the wise took their lamps, they took flasks of oil along with their lamps. Now while the bridegroom was delayed, they all began to nod off and they fell asleep. But at midnight there was a shout, "Look, the bridegroom is coming. Go out to meet him." Then all those virgins got up and put their lamps in order, trimmed the wicks, and added oil and lit them. But the foolish virgins said to the wise, "Give us some oil. Give us some of your oil, because our lamps are going out." But the wise replied, "No, otherwise there will not be enough for us and for you too. Go instead to the dealers and buy yourself oil." But while they were going away to buy oil, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding feast, and the door was shut and locked. Later the others also came and said, "Lord, Lord, open the door for us." But he replied, "I assure you and most solemnly say to you, I do not know you. We have no relationship. Therefore, be on the alert, be prepared and ready, for you do not know the day or the hour when the Son of Man will come." May the Lord bless the reading of His word. परमेश्वर अपने वचन के पठन को आशीषित रखे, आशीषित करे. सो यहाँ पे हम देखते हैं, यू नो द स्टोरी. आपने कई बार इस कहानी को सुना होगा, पढ़ा होगा. यू माइट हैव रेड इट मेनी अ टाइम्स, यू माइट हैव हर्ड इट मेनी अ टाइम्स. हियर द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, जो अलग या अलगाव वाली बात थी, यू नो, ये दोनों ग्रुप्स में वो थी. द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वॉज द ऑयल. हम देखते हैं कि तेल की वजह से, एक तेल था, शुरुआत में तेल था, शुरुआत में उनके दिए जल रहे थे, पर इवेंचुअली आगे चलकर हम देखते हैं कि उनका क्या हो गया, वो खाली हो गया. सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है. व्हाट इज देयर इनसाइड ऑफ अस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे अंदर क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है. एंड दैट्स द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. यू नो, दे वर फुल वंस अपॉन अ टाइम. एक समय पहले वो भरे हुए थे, लेकिन क्या है, आगे चलकर क्या है, वो खाली हो गए. एक समय पहले जो है वो प्रकाश था, लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि वो अंधकार में आ गए. You see, once upon a time there was light, once upon a time there was oil, but eventually we see that everything disappeared, everything went away. Spiritual bankruptcy was their portion. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. Praise the name of the Lord. And that's why we need to be very careful and we need to pay attention. So let's go further, let's move further. In Matthew chapter 5 and verse 14, मत्ती के 5वें अध्याय के 14वें वाक्य में हम जानते हैं कि यीशु हमसे कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो. यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. 16वें, वही मत्ती के 5वें अध्याय के 16वें वाक्य में, Matthew 5 and 16, Jesus says that let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. कि तुम्हारा चमक या तुम्हारी रोशनी इस कदर चमके कि लोग देखे और उस रोशनी को देखे और तुम्हारे पिता परमेश्वर की वाहवाही करें. Praise the name of the Lord. We are called to be the light, you know. यीशु मसीह के दिनों में, in the days of Jesus Christ, they used to use lamps and they used to use lanterns, and they needed oil so that the lamps and lantern will be lit up, you know, will be burning. So also even today, if you look at the bulbs and tube lights, we need energy, we need power. करंट चाहिए होता है. अगर ट्यूबलाइट और लाइट्स को भी, बल्ब्स को भी अगर जलना है, आज भी करंट लगता है.
उन दिनों में तेल लगता था, आज करंट लगता है, पावर लगता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पावर अंदर होना चाहिए तब जाकर लाइट जलेगा। यू नो व्हेन देयर इज करंट पासिंग देन इज व्हेन दीज लाइट्स एंड दीज बल्ब्स विल इल्यूमिनेट। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से? बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा से क्या है, भरे हुए रहें, सो दैट वी कैन बी द लाइट। ऑफ कोर्स हम पवित्र आत्मा को खरीद या बेच नहीं सकते हैं। यू नो यहाँ पे वो बुद्धिमान कुंवारियों ने कहा कि जाकर जो है तुम जाओ और खरीद के लेके आओ। यू नो जाकर डीलर्स के पास जाओ और खरीद के लेकर आओ। द वाइज वर्जन सेड दैट यू गो, वी कैन नॉट गिव आस, यू गो एंड यू go and buy. Of course, we cannot buy the Holy Spirit. We cannot buy the relationship with God. We cannot buy that. You know, everyone has to stand individually before God. हर एक को जो है खुद खड़े रहना है परमेश्वर के सामने. You know, everybody of us. So we cannot buy it. प्रेरितों की किताब में 8वें अध्याय में 18 से 20 अगर देखेंगे, जादूगर शिमोन पतरस के पास आता है और कहता है कि ये जो सामर्थ है, जो तुम सामर्थ को दर्शा रहे हो, वो मुझे खरीदना है, मुझको तुम बेच सकते हो क्या? एंड पतरस को बहुत गुस्सा आता है. पीटर इज वेरी एंग्री. साइमन द सॉर्सरर कम्स टू पीटर एंड सेज दैट आई वांट टू परचेस, आई वांट टू, कैन आई बाय दिस पावर दैट यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग, द अनॉइंटिंग दैट यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग, कैन आई बाय इट? एंड पीटर इज लाइक वेरी एंग्री. He says, you know, please, I mean, he kind of speaks very harshly to Simon the sorcerer. पतरस शिमोन उस जादूगर से कहते हैं कि तेरा नाश हो जाए, you know, destruction be your portion, ऐसा कहते हैं. So you cannot buy and sell the Holy Spirit. You know, you cannot do that. You cannot teach somebody ba 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 bo 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 be 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 be. You cannot teach anybody to speak in tongues. Praise the name of the Lord. It's the evidence of being full of the Holy Spirit that we speak in tongues. Praise the name of the Lord. Hallelujah. You cannot teach anybody. You cannot teach them. आप किसी को सिखा नहीं सकते. You know, आमतौर से जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, तो नई भाषा मिलता है हमको. यू नो, वी स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. प्रेरितों की किताब में 2 अध्याय में वो दिखाई पड़ता है. यू कैन नॉट डू ऑल दोज थिंग्स. पीपल आर डूइंग इट and that's why we are confusing the world around us. You know, please, we cannot do that. Okay, that apart. कहने का अर्थ है that the baptism of the Holy Spirit is one time. You know, जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको होता है, तो वो एक बार का, you know, it's one time thing. It's एक बार हमारा बपतिस्मा होता है. बट द इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना, इज अ कांस्टेंट थिंग. इट्स अ एवरीडे थिंग. लेट मी टेल यू, एवरीडे थिंग. व्हाई डू आई टेल यू एवरीडे थिंग? इनफैक्ट एवरी मोमेंट थिंग. हर पल जो है हमको पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना है. आई टेल यू व्हाई. वी विल नो इट फ्रॉम दिस पैराबल. We will learn from this parable why it has to be like that. क्यों हर पल हमने पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना है? It's very very important. You see, आजकल हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है, the things that are happening all around us, you know, it's very easy for us to be lazy, lethargic, spiritually lazy, spiritually lethargic. You know, spiritually lazy, spiritually lethargic. You know, not very concerned about spiritual stuffs. You know, things that we used to do before. Now we don't do it. You know, and that's why there's depression creeping in. और इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग डिप्रेशन आ रहा है उनको. परमेश्वर के लोग उनको you know, गुस्सेल हो रहे हैं and पता नहीं क्या क्या. मतलब it's really sad. You know, it's really sad. और इसीलिए हर पल पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना, now it's all the more crucial than how it, of course it was always very crucial, but now all the more crucial, doubly crucial. May I put it across like that? It's doubly crucial that we be full of the Holy Spirit, and that doesn't happen automatically. ये क्या बोलते हैं, अपने आप नहीं होता है. It needs you to do few things. It needs you to be in not proximity but intimacy with the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. आप जरूरी है कि आप और मैं जो है परमेश्वर के साथ में, you know, वो हमारा रिश्ता घनिष्ठ रिश्ता में हो. एंड वो रिश्ता कौन बांधेगा, कौन मदद करेगा? पवित्र आत्मा मदद करेगा. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. हालेलुया, हालेलुया. पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इफिसियों की किताब 5वां अध्याय और 18वें वाक्य में हम पढ़ेंगे. वहां पे
we will read it. We need to be the light, and so we need the anointing. We need the oil inside of us. It's very, very important. It's doubly crucial. Is what I would want to say over here. एफिसियों की किताब हम 5वें अध्याय में देखेंगे और 18वां वाक्य. आप इस जगह को भी जानते हो. एफिसियों की किताब 5वां अध्याय और 18वां वाक्य. जैसे मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, आप प्रियजन हिंदी में पढ़ लीजिएगा. एफिसियों की किताब 5वां अध्याय और 18वां वाक्य says, "Do not get drunk with wine, for that is wickedness, that is corruption, it is stupidity, but be filled with the Holy Spirit and constantly guided by Him." हिंदी में आपने क्या पढ़ा? हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि आप मदिरा से क्या है, मत वाले मत बने रहो, क्योंकि वो दुष्टता की ओर आपको लेके जाता है. लेकिन पवित्र आत्मा से क्या है, आप भरे रहो. मदिरा पीकर आप दुष्टता में मत चले जाओ, लेकिन पवित्र आत्मा से क्या है, आप भरे रहो. जब कोई मदिरा पीता है तो वो मदिरा के मदिरा और वाइन इज एन इन्फ्लुएंसर, उसके क्या बोलते हैं, प्रभाव में आ जाता है. हमने लोगों को देखा है, आपने देखा होगा, यू माइट हैव सीन पीपल, दे आर ड्रंक एंड ऑफ कोर्स विकेडनेस. पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है दुष्टता क्यों? क्योंकि दे स्टार्ट स्पीकिंग, दे डोंट हैव कंट्रोल, अपने पर उनका काबू नहीं रहता है. दे डोंट हैव कंट्रोल ऑन देमसेल्व्स एंड दे स्पीक रबिश, मतलब सारे गंदे शब्द उनके मुंह से निकलते हैं. उनका चाल जो है वो सीधा रहता है, लेकिन मदिरा पीने के बाद जो है चाल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है. बदबू आती है उनसे, ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, अपने होशो हवास में नहीं रहते हैं. दे आर नॉट इन देयर सेंसेस, गिरे पड़े रहते हैं कहीं पे. तो हमने जो है वी हैव सीन men from good families, having big children, good families, having good wives and very good families fallen on the street. And क्यों? मदिरा से it leads you to wickedness, it leads you to praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. A straight man just becomes crooked, just becomes wicked. यहाँ पे पत्रस हमसे कहते हैं, डू नॉट बी ड्रंक इन विथ वाइन. आप मदिरा से मतवाले मत बनो, आप दुष्टता की ओर मत जाओ, लेकिन पवित्र आत्मा से भरे हुए रहो. जब पवित्र आत्मा से भर जाओगे आप, तो पवित्र आत्मा, द लॉर्ड, द होली स्पिरिट ऑफ गॉड टेक्स control of our lives. In fact, he takes control of our lives, and our lives that are not straight, हमारा जीवन जो सही नहीं है, सीधा नहीं है, पवित्र आत्मा फिर हमारे जीवन को क्या है, सीधा कर देते हैं. पवित्र आत्मा हमारी जबान का ताबा लेता है. he takes hold of our, remember प्रेरितों की किताब 2वां अध्याय, आग सी फटती हुई उनके जबान पर आकर it stayed, it rested, and they started speaking in different languages. वहां पे आश्चर्यजनक काम होने लगे. Praise the name of the Lord. जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हैं, तब क्या हो जाता है, वो हमारी जबान का नियंत्रण लेते हैं, वो हमारे जीवन का नियंत्रण लेते हैं, और उनका नाम पवित्र आत्मा है, और वो हमको यीशु की तरह बनाते हैं. He makes us like Jesus. He gets us closer to Jesus. He reminds us of what Jesus has spoken. That's what he leads us into truth, not to wickedness, but to holiness. Praise the name of the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. Hallelujah, Hallelujah. So यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, the one who is full of the Holy Spirit of God will be led by the Holy Spirit of God. केवल वही पवित्र आत्मा के अगुवाई में रहेगा. He will be led by the Spirit of God. And listen, those who are led by the Spirit of God, जिनकी अगुवाई पवित्र आत्मा करते हैं, वो परमेश्वर के संतान हैं. They are the sons of God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. Hallelujah. You see, wine is intoxicating, and so also ask those people who are so used to be full of the Holy. They are used. They are used to be full of the Holy Spirit. वो आदी हैं कि उनको पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना है, और ये एक मानो लत लग जाती है. जैसे पौलुस, मैं समझती हूँ यहाँ पे ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मदिरा का लत मत लगाइएगा, लेकिन ये लत आपके जीवन में हो कि आप पवित्र आत्मा का लत आपके जीवन में हो, कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए रहे. एक सेकंड के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे
आप पुनः जो है इनसे कहे कि पवित्र आत्मा मुझे भर, मेरे जीवन को भर, कहीं पे भी कोई रिक्त स्थान नहीं रहे, कहीं पे कोई खाली स्थान नहीं रहे। मैं नो आई लेट देयर नॉट बी any place in my life that is empty. Fill every part of me, Holy Spirit of God. I just need you and I want you, Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। इसी जब आप और मैं पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हैं, तब हम शरीर की लालसाओं की पूर्ति नहीं करेंगे। गलातियों की किताब 5वां अध्याय 18वें वाक्य में हम देखेंगे कि जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए रहेंगे तब पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलेंगे। और जब पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलेंगे, when we are full of the Holy Spirit of God, we will be led by the Spirit of God. And when we are led by the Spirit of God, we will not fulfill the lust of the flesh. हम फिर शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। This year the theme the Lord has given Pune Church, the 10th year that you're entering, 10वें साल में जो आप प्रवेश कर रही हैं, कलीसिया प्रवेश कर रही हैं, you know, be full of His Spirit in a fresh manner, in a new manner. हमने आपसे कहा कि बपतिस्मा एक बार का होता है, एक बार बपतिस्मा होता है, उसके बाद जो है बार बार अपने आप को पवित्र आत्मा से भरे रखना बहुत ज़रूरी है। इट्स नेसेसरी दैट वी आर फुल ऑफ द होली स्पिरिट कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली, बिकॉज इवन इफ यू सी इन द बुक ऑफ एक्ट्स, अगर आप प्रेरितों की किताब में देखते हैं, वहाँ पे यू सी टाइम एंड अगेन, you know, after the episode of Acts chapter 2, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय का वो जो ब्यूटीफुल सुंदर सा उनका अनुभव था, that beautiful experience, उसके बाद भी हम देखते हैं पतरस, पौलुस, बारनबस, 4 अध्याय में 31वें वाक्य में हम देखते हैं कि बाकी के सारे वे शिष्य लोग जो वहाँ पे भी थे, you know, यहाँ पे भी वे जब इकट्ठा हुए, जब प्रार्थना करने लगे तो पवित्र आत्मा ने उनको भर दिया। सो भरपूरिता, भरना, you know, to be replenished by the Holy Spirit of God is again and time and again. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Hallelujah. What is inside matters. There are many of us who are empty today. हम खाली हैं, दिखाते तो है, बाहर से दिखता तो है, लगता तो है कि हाँ भरे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली भरे हुए नहीं हैं। ये कुंवारियाँ थी, दिखने के लिए, you know, 10 जन कुंवारियाँ ही थी, लेकिन जो अंदर था, you know, उनके आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आप समझ रहे हैं? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए क्योंकि हम खाली हैं, क्योंकि हम भरे हुए नहीं हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, इसीलिए हम जो है झगड़ा करते हैं, धा करते हैं, एक मसीह के पीठ पीछे बोलते हैं, फूट लाना चाहते हैं। क्यों? ये पवित्र आत्मा के तरीके नहीं हैं। दिस इज नॉट द वे ऑफ द होली स्पिरिट. Somewhere we are empty, and that's the reason why we are focusing on these things rather than focusing on higher things. इन चीज़ों पर हम ध्यान दे रहे हैं, ऊंची बातों पर ध्यान देने के बजाय। I pray that this year, मेरी प्रार्थना ये है आपके लिए कलीसिया, पुणे कलीसिया, मेरी प्रार्थना ये है कि ये साल, ये 10वें साल में जो आपने प्रवेश किया है, ये साल में प्रभु और उनकी आत्मा की बात को आप जोहेंगे, and you know, you will wait for the filling and the filling again and again of the Holy Spirit, and you will experience His move. पवित्र आत्मा के संचालन को आप बिल्कुल अगले लेवल का, you know, उनके संचालन को देखेंगे. You know, you will experience the movement of the Spirit of God, the momentum of the Spirit of God like you've never experienced before. You see, that day was the 10th day after Jesus Christ ascended into heaven. उस दिन, पेंटेकोस्ट का दिन, 10वां दिन था. यीशु मसीह जो है 40वें दिन उनका स्वर्ग आरोहण हुआ, और उसके बाद 10वें दिन पवित्र आत्मा जो है वो उतर आए. और मेरी प्रार्थना आपके लिए, पुणे कलीसिया के लिए ये है, you know, उस दिन प्रेरितों की किताब में 2 अध्याय में आप देखेंगे, उस दिन जो हुआ वो बहुत ही अचंबा हुआ. You know, whatever happened there was very astonishing. You know, उन्होंने इस तरह से जो 120 लोग वहाँ पे थे, you know, 120 people who were over there, they couldn't have imagined कि इस तरह से होगा. उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह से होगा, and उस तरह से हुआ. And I just pray that what you have not imagined, कि this can happen. You know, of course, pleasant things and good things, this can happen, will begin to happen in the 10th, you know, that was 10th day, this is 10th year, will begin to happen in your midst, will begin to happen in your individual lives, will begin to happen collectively, will begin to spill over
Because what happened that day, जो उस दिन हुआ, उस ऊपरी कोठरी में उस दिन जो हुआ, it spilled over. People around began to notice, and I pray that this year will be a, if you are full of Him time and again and constantly and continuously. अगर आप जो है, mindfully, मन लगाकर ये प्रयास करते हैं that you would be full of Him, you will be replenished of Him time and again. हम आपसे कह रहे हैं कि recognition will be the portion of Pune Church in Jesus' mighty name. That Pune, the hill city, you will be a lighthouse on that hill city. Set on that hill city. Pune is a hill city. I believe Pune is a hill city. So now that hill city of Pune, you will be a lighthouse. In the name of Jesus Christ of Nazareth, in the name of Jesus Christ of Nazareth, that you will be Pune Church. You will be someone who will give direction to people, direction to their lives. In the name of Jesus Christ of Nazareth, be full of the Holy Spirit. Be full of the Holy Spirit. So number one, पवित्र आत्मा से भरे हुए रहो. So number one, these ones. The differentiating factor was the oil, you see, the anointing, the differentiating factor. Number two, I want to bring to your notice, like what we were talking before, जो हम बात कर रहे थे. Number two, you see, when Jesus came, these guys, the foolish ones, they realized that they did not have oil. जब यीशु मसीह आए, the bridegroom came. I'm just bringing it to our context and trying to take out the meaning to our context. And when Jesus came, जब यीशु मसीह आए, or should I say when the bridegroom came, जब वो दूल्हा आया, that time they realized they don't have the oil. They don't have the oil. Yeah, they don't have the oil. तब जाके उनको पता चल जाता है कि there is no oil. यहाँ पे कोई तेल नहीं है हमारे दिए में, और हमको क्या है, अरे बाप रे, अभी क्या करेंगे. Praise the name of the Lord. You see, why we were telling you that it has to be constantly, it has to be second basis, that you need to be sure that you are filled with the Holy Spirit of God. Because Jesus, in chapter 24, He says, nobody knows when I'm going to come. Nobody knows. It's only the Father who knows. Not even the angels know. It says, स्वरदूत भी नहीं जानते हैं, सिर्फ पिता जानते हैं कब मैं आने वाला हूँ. You never know the hour and the time when I'll come. नहीं you don't know. आप नहीं जानते हो कब यीशु आएंगे, कब वो प्रकट होंगे. और जब वो आएंगे, तब अगर आप में वो भरपूरिता नहीं है पवित्र आत्मा का, वो तेल नहीं है, वो अभिषेक अंदर वाला अभिषेक नहीं है, अंदर अभिषेक नहीं है, तब क्या होगा? So you cannot depend. See, ये 9 साल जो हुए हैं वो हो गए हैं. It's whatever the Lord enabled you to do, church, it's fine. All glory to God, praises to Him. It's all about Him, and He only enabled you to do. Forget about it. Forget about it. Now in the 10th year, it has to be in a fresh way, in a fresh manner, and on a daily basis. Let me say, not daily basis, second by second basis. It has to be. For all of us, for that matter, if He comes now, are we full? Are we bright? Are we shining? Is what will enable us to? Is what will depend on it whether we go with Him or we don't go with Him. So He wants us to be constantly and continuously blazing for Him. वो चाहते हैं कि निरंतर हम उनके लिए क्या है, जलते रहें. Please, very very important. बहुत ही महत्वपूर्ण बात. And so like that's in verse 8, they notice that Jesus, the bridegroom is coming, and they realize that they do not have oil, and they do not have, and the light is going off, and they went into darkness to go and purchase, to go and do whatever they had to do so that they would come and then they would go with the bridegroom. It's not going to happen that way. Now is the time that is given to you and me, and now is the time when we need to refocus on the Lord, straighten up our lives, yield to the Holy Spirit of God, and walk in tandem with the Holy Spirit of God. अभी वो समय है कि हम अपने आप को सही करें, पवित्र आत्मा से भरे हुए रहें और पवित्र आत्मा के चलाए हम चले. अगर सच में हम परमेश्वर की संतान हैं, तो अगर really we are His children, then we are His sons and daughters, then we need to focus on these things. Very 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 important. And see, so sad if we read, अगर हम मत्ती की किताब के 25वें अध्याय में पढ़ते हैं और 10वां और 11वां और 12वां वाक्य पढ़ते हैं, if you read
मत्ती का किताब और 25वां अध्याय, Matthew 27, and if you read 10, 11 and 12, it says, but while they were going away to buy oil, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding feast, and the door was shut and locked. Later the others also came and said, Lord, Lord, open the door for us. But he replied, I assure you and most solemnly say to you, I do not know you. We have no relationship. Praise, so sad. कितनी बुरी बात है. यहाँ पे ये लोग आते हैं और यीशु को, दूल्हे को प्रभु प्रभु कर कर पुकारते हैं. जैसे लॉर्ड लॉर्ड, एंड he says, no, I don't have any relationship with you. I don't know you. I don't recognize you. Does it remind you in another place? Does it remind you of another place? क्या आपको ये और एक जगह को याद दिलाता है जहाँ पे यीशु कहते हैं, मत्ती के 7वें अध्याय में यीशु कहते हैं कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ. हम वो जगह भी पढ़ेंगे, मत्ती का 7वां अध्याय 21 से 22, Matthew 7, 21 and 22. मत्ती 7, 21 और 22, Matthew 7, 21 and 22. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, when I judge them, Lord, Lord, have we not prophesied in your name and driven out demons in your name and have done many miracles in your name? And then I will declare to them publicly, I never knew you. Depart from me. You are banished from my presence, you who act wickedly, disregarding my commands. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. हालेलुया. आई बिलीव आपने हिंदी में पढ़ा होगा. यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ. ये लोग कहने लगे कि प्रभु, हमने आपके नाम से भविष्यवाणियाँ की हैं, हमने दुष्ट आत्माओं को भगाया है, हमने आश्चर्यजनक कर्म आपके नाम से किए हुए हैं. यीशु कहते हैं कि मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ. ये देखिए, ये सारे वरदाने हैं. These are the gifts. पहले यूहन्ना की किताब 2 अध्याय और 27वें वाक्य में लिखा हुआ है. अगर आप वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़िएगा. लिखा हुआ है कि आपके अंदर का अभिषेक, अंदर जो अभिषेक है वो आपको सिखाता है. Praise the name of the Lord. ये अभिषेक, जो अंदर वाला अभिषेक है, the anointing inside of you teaches you. The anointing inside of you, जो अभिषेक आपके अंदर है वो आपको सिखाता है, वो आपको मार्गदर्शन करता है. And that anointing, वो अभिषेक जो आपके अंदर है, वो अभिषेक आपके चरित्र को बनाता है. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. आपके पास में गिफ्टिंग हो सकता है. You can have the giftings, but if you do, you can have the charisma. आपके पास में charisma हो सकता है, लेकिन if you don't have the character, अगर आपके पास में चरित्र नहीं है, अगर आपका चरित्र सही नहीं है, और चरित्र आपका कौन मसीसा बनाएगा? वो अभिषेक है, वो तेल है, वो पवित्र आत्मा है. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So are you understanding? The anointing inside of you teaches you. Do you want to go over there? पहले यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 27वां वाक्य. पहले यूहन्ना की किताब 2 अध्याय और 27वां वाक्य. I just want to come there. पहले यूहन्ना की किताब और 27वां वाक्य says, and for you the anointing which you received from him remains permanently in you, and you have no need for anyone to teach you, but just as the anointing teaches you, gives you insight through the presence of the Holy Spirit about all things, and is true and is not a lie. Just as his anointing has taught you, you must remain in him, being rooted in him, knit in him. So ये अभिषेक जो आपके अंदर है वो आपको सिखाता है. That builds your character. ये अभिषेक जो अंदर है, ये जो तेल अंदर है, वो आपके चरित्र को मसीह सा बनाता है. जैसे आप अपने आप को सरेंडर करते हैं, like as you surrender to him, to the Holy Spirit of God, listening to every nudging to him, giving your life's control into his hands. आप अपने जीवन का अधिकार या नियंत्रण उनके हाथों में दे देते हैं. This anointing, teaches you and it directs you. ये अभिषेक जो है, ये अभिषेक, ये पावर, ये सामर्थ आपको डायरेक्शन देता है. ये पवित्र आत्मा आपको डायरेक्शन देते हैं. His power directs you. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. This is character. Charisma, not charisma, not giftings,
what your character, you know, I just stumbled upon this testimony. You know, कुछ समय पहले या कुछ दिन पहले मैंने ये एक्सटिमनी को सुना एंड मैंने वो पढ़ा एक्चुअली यूट्यूब पर एंड मैं सोच में पड़ गई. आई स्टार्टेड थिंकिंग ये एक्सटिमनी क्या है. यूजुअली तो हम टेस्टिमनी देते हैं, सही बात है ना, यूजुअली हम टेस्टिमनी देते हैं, तो ये एक्सटिमनी क्या है. एंड थोड़ा सा क्यूरियस हो गई मैं एंड आई वाज अ लिटिल क्यूरियस एंड आई सेड ओके लेट मी जस्ट चेक व्हाट्स दिस एक्सटिमनी. एंड मैंने वहाँ पे क्लिक किया एंड क्लिक किया तो वहाँ पे ये लेडी ये बता रही हैं कि कैसे वो जब वो मसीह थी, एक्स मसीह थी, एंड कैसे मसीहत में वो आई और उसने सब कुछ जो देखा और देखने के बाद जो है वो अभी मसीहत से निकल गई है, वो अभी एक्स मसीह है, एक्स क्रिश्चियन है. शी इज एन एक्स क्रिश्चियन. शी गॉट इनटू क्रिश्चियनडम एंड शी सीन एवरीथिंग एंड शी इज गॉट आउट of Christendom now and she's giving testimony in the sense वो testimony दे रही है और testimony ये दे रही है कि मैं जो बाहर आई हूँ you know बहुत अच्छा हुआ है मेरे साथ. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. Because somewhere or the other that character that Jesus like I you know in fact मैं सोचने लग गई कि क्यों ऐसा you know, क्योंकि जब मसीह को कोई पहचानने लग जाता है, जब मसीह से प्रेम में पड़ जाता है तो मसीह so beautiful. I mean वो कितने अद्भुत है, कितने सुंदर है. आई मीन he's just magnificent. और ऐसा कोई कैसे बोल सकता है? हाउ कैन एनीबडी जस्ट बी स्पीकिंग लाइक दैट? एंड देन आई रियलाइज इट्स नॉट अबाउट जीसस. ये यीशु को लेकर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यीशु के लोगों से उनको प्रॉब्लम है. क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम दर्शाते हैं, हमारे गिफ्टिंग्स को लेकर जो हम दर्शाते हैं, वो अगर वो हमारे नज़दीक आ जाते हैं, लोग हमारे नज़दीक आ जाते हैं, तो हमारा चरित्र कहीं ना कहीं मसीह सा नहीं है. यू नो हमारा चरित्र मसीह सा बिल्कुल भी नहीं है. हम आई डोंट वांट टू गो देयर, लेकिन आप जानते हैं हम क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं. एंड जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे कि हमारा चरित्र, सिर्फ पवित्र आत्मा का काम, वो इसीलिए आए हैं, इसीलिए तो वो हमारी मददगार हैं. दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द हेल्पर. ही वांट्स टू मेक जीसस ऑफ अस. ही वांट्स टू रिप्रोड्यूस जीसस इन अस. ही वांट्स टू मेक जीसस ऑफ अस. यू नो डिवोशन में हम सुन रहे थे कि you know we need to imitate Christ, copy Christ in every day, every moment. Copy him, how Jesus would behave, how Jesus would talk, how Jesus will go about, how he will reason is what the Holy Spirit would help us put in practice. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. आजकल you know आजकल के ये समयों में प्लीज हमारा चरित्र मसीह सा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी मसीहत को लेकर कंफ्यूजन में पड़ी हुई है. प्लीज ये हमारा you know जब परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की, द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज की स्थापना की, तब उन्होंने कहा कि हम पहाड़ के शिखर की कलीसिया होंगे और जो आशीषें जो है हम पर पड़ेंगी, वो आशीषें जो है यीशु के शरीर के लिए भी हम आशीष का कारण बनेंगे. वी विल बी अ ब्लेसिंग टू इवन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. वी बीइंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट विल बी अ ब्लेसिंग टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. कम ऑन, देयर आर थिंग्स दैट हैव बीन अपसेटेड कंसर्निंग आवर लॉर्ड. चीज़ें जो है गड़बड़ी में है हमारे प्रभु को लेकर. लेट्स जस्ट सेट इट राइट. हम उसको सही करें. Let's just show the right Jesus, the true Jesus. हम सही यीशु को दर्शाए. We're not going to go see Jesus there. They will see Jesus in us, character. When you and I, Pune Church, when you and I are full of Jesus, when you and I are full of His Spirit, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. When people see us, they will see Jesus in us. And when they see Jesus in us, tell me who cannot fall in love with this Jesus? जब लोग हमको देखेंगे तो हमको यीशु, हम में यीशु को देखेंगे. और अगर हम में वो यीशु को देखेंगे तो कौन यीशु के प्रेम में नहीं पड़ जाता है? यीशु, ही सो लवेबल, सो ब्यूटिफुल. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. हालेलुया. There are so many things that we can talk, the hindrances to the anointing and stuff like that, but I do not want to go there. I just want to bring one-off thing over here that is so prominent in this place, Matthew chapter 25. ये मूर्ख कुंवारियां, वो careless, बहुत लापरवाह थे. तैयार नहीं थी, लापरवाह थी.
ऊपर 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 जो दिख रहा था, you know, ऊपरी stuff. They were very careless. They were just not what to say, not bothered. They were very careless. बहुत ही लापरवाह थे, कोई परवाह नहीं था. ऊपरी था, you know, it was just the outer thing and not the inner thing. And they were not prepared. वो तैयार नहीं थे. I pray that even as in this 10th year, you prepare yourself on a daily basis, on a second basis. I pray that we will show forth, we will enable, we will yield with the Spirit of God to be Jesus. We will enable the Spirit of God to make Jesus of us. Praise the name of the Lord. Hallelujah. I'll just wind up over here and I would want to pray. Before I pray, this is something that has been impressed upon my heart and I want to do it. I did not want to. मैं करना नहीं चाहती थी, but because it's impressed upon my heart and I just want to do it. If you are someone who's watching and you have torment in your life and you have suffocation in your life and you feel empty and you feel really, really so troubled. अगर आप हमको देख रहे हैं and आप को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, आपको अपने अंदर जो है खालीपन लग रहा है, आपको घुटन सी हो रही है आपको, और आपको ऐसे लग रहा है कि कोई आपको दबा रहा है, और आपको ऐसे लग रहा है कि क्या क्या नहीं, उस तरह से आपको फीलिंग हो रहा है. हाँ, मेरी आपसे अनुरोध है, आप यीशु को चेक कर देखिएगा. आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू, ट्राई जीसस. आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कहना कि यीशु मेरे जीवन में आ. यू नो, जस्ट से जीसस अपने हृदय से, ऑफ कोर्स विथ योर हार्ट से, जीसस कम इनटू माय लाइफ. यीशु मेरे जीवन में आ. यीशु मेरे जीवन में आ. यीशु मेरे जीवन में आ. That's what you have to say. Come Lord Jesus, come in my life. Come Lord Jesus, come Lord Jesus. आपको सिर्फ ये कहना है, दिल से कहिएगा. और जैसे आप ऐसा कहते हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएंगे. अगर हो सके तो मेरे पीछे ये प्रार्थना को अगर आप दोहरा सकते हैं, it would be very nice. I will pray in Hindi because I think we understand the language. So maybe I'll do that in Hindi first and then in English. So you can with your heart, if you will. Dear Lord, प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में आइए. हम कबूल करते हैं कि हम पापी हैं. हमारे आपके लहू से हमारे पापों को धो दीजिए. हमको नया जीवन दीजिए. धन्यवाद यीशु. Now we'll do this in English. Dear Jesus, I invite you in my life. Come in my life. Cleanse me of my sins. Cleanse me with your blood. Thank you, Lord. Give me new life, Jesus. In Jesus' name we prayed. पवित्र आत्मा आएंगे. The Holy Spirit of God will come and I'm telling you, every emptiness will go. Every suffocation will go. Every torment will cease. हर एक खालीपन जो है वो निकल जाएगा. हर एक अंधकार जो है वो निकल जाएगा. हर एक वो घुटन जो आपको महसूस हो रहा था वो भी निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम से. हालेलुया. हमारे संपर्क में पास्टर जी के संपर्क में आप आ सकते हैं. पास्टर बिनोय, पास्टर सेरा के संपर्क में आप आ सकते हैं. वो आपकी अगुवाई करेंगे, आपको सुंदर सुंदर बातों को बताएंगे जिसकी वजह से आपका जीवन बहुत ही सुंदर और खुशबूदार होगा. या so that your life will be transformed and be beautiful and be full of fragrance. Yeah? God bless you. आइए हम आखिर में प्रार्थना करेंगे. In the end, let's just pray.
जी लॉर्ड, वी जस्ट वांट टू थैंक यू वंस अगेन। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि आप हमारे मध्य में रहे हो। धन्यवाद कि आपने हमसे बातें की। जैसे हम अपना ध्यान आपकी ओर लगाते हैं और आपके कहे पर लगाते हैं, परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवन आपकी आत्मा से भरा हुआ रहे, कि हम वो प्रकाश बने रहे लॉर्ड, दैट वी माइट बी दैट लाइट दैट यू कॉल्ड अस टू बी लॉर्ड, दैट आवर लाइव्स विल बी full of your Holy Spirit, God, and our lives will be what you called it to be, Father God, Lord. And Lord, even as you come, the great light, even as you come, we will not be consumed by you, but we will merge with you. Thank you, bless your wonderful name. Give you all the glory, give you all the praise. हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, सारी महिमा सर आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you. Shalom.